आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पिक्सल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के रियासती खबरों के बुलेटिन आईने दक्कन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल हयाउ खैरु कुल्लुहु, मुस्लिम शरीफ। हया सरापा भलाई है। तफसीली खबरों से पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। काबतुल्लाह में सैनिटाइजिंग के लिए किया जा रहा है रोबोट का इस्तेमाल। ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र मुख्तलिफ कायदीन की जानिब से पार्टी बदलने का अमल जारी। जनरल कांग्रेस कमेटी मेदक ने थामा टीआरएस का दामन। बेगम बाजार के कब्रिस्तान की आराजी, जीएचएमसी के गैर मजाज तामीरात के खिलाफ मजलिस का एहतजाज। और धरनी पोर्टल के लिए जारी सर्वे में गैर जरूरी जानकारी हासिल करने पर तर्जुमान एमबीटी अमजदुल्ला खान ने उठाए सवाल। रुख करते हैं तफसीली और अहम खबरों की जानिब। आज की खबरों की शुरुआत आज एक अहम और मुतबरिक खबर से करते हैं। वो खबर यह है कि मक्का मौसमा में हरम शरीफ की सफाई का काम अंजाम देने वाले इदारे की जानिब से आज रोबोट सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया गया है। ये पहली बार है कि हरम शरीफ में इस तरह के रोबोट का इस्तेमाल किया गया है। ये रोबोट सैनिटाइजर हरम शरीफ के कोने कोने में जाकर जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव कर रहे हैं। दबाक हल्का असेंबली में टीआरएस की जानिब से मुकाबले के लिए अंजहानी एमएलए रामलिंगा रेड्डी की अहलिया के नाम को क़तियत देते ही मुख्तलिफ कायदीन का पार्टी बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। कल टीआरएस कायद चिरुकू श्रीनिवास रेड्डी ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली थी, तो आज कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी चिरुकू कोंडल रेड्डी ने आज रियासती वजीर बराए फाइनेंस हरीश राव की मौजूदगी में टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि पार्टी का हकीकी कारकुन वही है जो पार्टी के फैसलों को तस्लीम करे, ना कि मुखालिफत। इन्होंने श्रीनिवास रेड्डी पर बिलरास्त तनकीद करते हुए कहा कि पार्टी के फैसलों की मुखालिफत करने वालों की पार्टी में कोई जगह नहीं है। वज़ीर मौसूफ ने उम्मीद का इजहार किया कि टीआरएस उम्मीदवार सुजाता भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। టీఆర్ఎస్ పార్టీతోనే ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి జరుగుతుంది। మన కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత ఇవాళ నెలకు 2000 రూపాయల పెన్షన్ వస్తా ఉంది, బీడీ కార్మికులకు వృత్తి వస్తా ఉంది, కళ్యాణ లక్ష్మి కార్యక్రమం కింద ఆడపిల్ల పెళ్లికి 1,00,000 రూపాయలు వస్తా ఉన్నాయి, ఆసుపత్రికి పోతే కేసీఆర్ కిట్ వస్తా ఉంది। ఇవాళ కేసీఆర్ నాయకత్వంలో బ్రహ్మాండమైన అభివృద్ధి జరుగుతా ఉంది। అయితే ఈరోజు మీరందరూ కూడా ఒకటే ఆలోచించాలి, మన గ్రామం నుంచి నిన్నటిదాకా టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉండి టికెట్ కావాలని అడిగింది। ఇప్పుడు రామలింగారెడ్డి గారు పాపం 2 సంవత్సరాలకు ఆరోగ్యం బాగలేక ప్రాణం బాగలేక ఆయన చచ్చిపోయింది। చచ్చిపోయిన మనిషిని రోడ్డు మీద తీసి పెడతామా? మనం ఆ కుటుంబానికి ఆసరగా ఉండాలా వద్దా?
ఆ కుటుంబం చనిపోయినప్పుడు ఆ కుటుంబాన్ని నిలబెట్టుకొని కాపాడుకునే బాధ్యత మనం ఎవరైనా చేయమా? ఇవాళ మనిషి సడన్ గా చనిపోతే అందరం ఇంత ఆశలైతాం. ఇవాళ ఇక్కడ మీ నాయకుడు మాకు టికెట్ కావాలన్నాడు. అరే నాయన 4 రోజులు ఒప్పుకోబట్టు, ఆయన అడ్మిట్లో చనిపోయిండు, వాళ్ళ కుటుంబాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి, నిన్ను కూడా గౌరవిస్తామన్నాడు. నిన్నటిదాకా కేసీఆర్ జైఎన్ పాటలు పెట్టిండు, హరీష్ రావు జైఎన్ ఫోటో పెట్టుకున్నాడు, ప్రభాకర్ అన్న మంచి నాయకుడు అన్నాడు. నిన్నటిదాకా మేమందరం మంచోళ్ళమే. ఇక ఇలా టికెట్ ఆయన చనిపోయిండు, ఆయన భార్యకి ఇచ్చి వాళ్ళ కుటుంబాన్ని కాపాడతామంటే మేము చెడ్డోళ్ళం అయిపోతామా? నిన్నటిదాకా మా ఫోటోలు పెట్టుకున్నాడు, బొమ్మలు పెట్టుకున్నాడు, టికెట్ ఇవ్వమన్నాడు. ఇక టికెట్ ఇవ్వకపోగానే అయిపోయాను, బొమ్మలు మారుడేనా పొద్దుకి? ఇంత అన్యాయం ఉంటుందా? అంటే టికెట్ ఇస్తే మంచోళ్ళం, టికెట్ ఇవ్వకపోతే చెడ్డోళ్ళం. ఎవరమైనా మా అక్క చెల్లెలు ఆలోచించాలి. ఇంటి యజమాని చనిపోతే ఇచ్చిపెట్టుకుంటావా? ఆ కుటుంబాన్ని మనం కాపాడుకొని నిలబెట్టుకునే బాధ్యత ఇవ్వాలి మన మీద ఉండదా? 4 రోజులు ఒప్పుకోబెట్టు, నీకు భవిష్యత్తు ఉంటుంది అంటే కూడా ఈ రోజు ఈ రకంగా చేయడం ఎంతవరకు సమంజసమో దయచేసి మీరే ఆలోచించండి. గ్రామస్తులుగా ఇలా మన ఇంట్లో ఎవరైనా చనిపోతే మనం ఆ ఇల్లును, ఆ కుటుంబాన్ని వదిలిపెట్టి రోడ్డు మీద వదిలిపెట్టి ఇక మన పని మనం చేసుకుంటేనా? ఇక కనీసం ఓ మర్యాద, పద్ధతులు, సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయా? మరి నిన్నటిదాకా చెయ్యంటివి ఇవాళ నై అంటే ఎట్లయితే? ఇది దయచేసి మీరు కూడా ఆలోచించాలి గ్రామస్తులని కోరుతాను. हल्का ग्रेजुएट कानूनसाज कौंसिल के इंतखाबात के पेश नज़र मलकाजगिरी MLA मानमपल्ली हनुमंतराव ने आज ग्रेजुएट फहरिस्त राय दहिनगान में नामों के इंदराज के मरकज का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हल्का ग्रेजुएट कानूनसाज कौंसिल के इंतखाबात काफ़ी अहमियत के हामिल हैं और पार्टी कारकुन फहरिस्त राय दहिनगान में ग्रेजुएट्स का नाम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में दर्ज करवाएं ताकि TRS उम्मीदवार को कामयाबी को यकीनी बनाया जा सके। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के उस तयक़ुन के बावजूद के किसी भी वक्फ आराजी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा और ना ही किसी तामीर के लिए NOC जारी की जाएगी। आज GHMC की जानिब से तकिया कबीरुद्दीन शाह कब्रस्तान वाक़ बेगम बाज़ार हल्का असम्बली गोशा महल पर गैर मजाज तरीक़े से अवामी बैतुल ख़ला की तामीर का आगाज़ किया गया, जिस पर मिर्ज़ा रहमत बेग इंचार्ज मजलिस हल्का असम्बली गोशा महल ने वहाँ पहुँच कर ज़बरदस्त एहतजाज दर्ज करते हुए काम को रुकवा दिया। इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस भी वहां पहुंचकर एहतजाजी कायदीन को गिरफ्तार किया है। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन और बाजिद की ये रिपोर्ट। तकिया कबीरुद्दीन शाह के ख़ब्रस्तान की ज़मीन के ऊपर नाजायज़ GHMC वाले अपनी गुंडागर्दी करते हुआ विनय कपूर बोल के डिप्टी कमिश्नर है, उन्हें पुलिस का सहारा लेकर ख़ब्रस्तान की ज़मीन के ऊपर नाजायज़ के टॉयलेट बनाना चाह रहे हैं। और वक्फ बोर्ड के पास कोर्ट में आर्डर पेंडिंग है। वक्फ बोर्ड यहाँ पर आके आर्डर बता रही तो भी वक्फ बोर्ड के अहदेदारों को भी पुलिस यहाँ पर गिरफ्तार करी है। और इस ताल्लुक़ से इस ताल्लुक़ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसकी मज़म्मत करती है। और ये क़ब्रस्तान के ताल्लुक़ से सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर वक्फ बोर्ड के ऊपर भी धरना दिया गया था, नाजायज़ यहाँ के ऊपर टॉयलेट बना रहे बोल के। फिर से एक बार पुलिस का भारी बंदोबस्त डालकर यहाँ पर ये विनय कपूर बोल के ये बेगम बाज़ार CI साहब गैर ज़रूरी के इसमें इन्वॉल्व होके यहाँ पर तमाशा कर रहे हैं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं यहाँ के पुलिस के आला अहदेदारों को भी बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग लाइन आर्डर को काबू में रखिए, नहीं तो यहाँ पर गड़बड़ी होंगी तो इसके ज़िम्मेदार यहाँ के बेगम बाज़ार CI साहब रहेंगे।
इसके लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम के, जो कि उन्होंने वन साइड जाकर जो ये काम करा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। हमारे इबादत गाह है यहाँ पर, हमारा खबरस्तान है यहाँ पर, हमारे खबरस्तान की जगह गंदगी सुनने, तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आवाम की तवज्जो हटाकर कीमती अशिया का सरका करने वाले मुजरिमीन को राजेंद्र नगर पुलिस ने आज धर दबोचा है। तफसीलात के मुताबिक 25 सितंबर को राजेंद्र नगर के बुधवेल इलाके में एक 60 साला खातून विश्वेश्वरी जो अपने घर जा रही थी तो मुलजिम संजय सिंह और साइकिल मोटर पर एक खातून के करीब आकर इसको बहला फुसलाकर इसकी तवज्जो हटाने की कोशिश करने लगे और इसके गले में मौजूद 2.5 तोले का लच्छा उड़ा ले गए। विश्वेश्वरी की जानिब से दी गई दरख्वास्त पर काम करते हुए सीसीटीवी कैमरों की छानबीन की गई और राजेंद्र नगर पुलिस ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और इसके पास से 11 तोले सोना बरामद किया गया। इस कामयाबी में असिस्टेंट कमिश्नर राजेंद्र नगर, क्राइम इंस्पेक्टर राजू, डीएसआई अरुण कुमार और दीगर अमला ने अहम रोल अदा किया है। हमारे नुमाइंदे साइबराबाद मोहम्मद मोहसिन की ये रिपोर्ट। अटेंशन डाइवर्शन अफेंडर, एक स्नैचर, उसका नाम संजय सिंह है, उम्र एक 43-44 ईयर्स रहता है। वो धूलपेट का रहने वाला है। ये संजय सिंह 10 साल पहले से ये गुड़म्बा बिजनेस करता था। उसके ऊपर एक तकरीबन एक 25 से 30 गुड़म्बा केसेस भी हुए गोशामल डिवीजन में। एक्साइज वाले डाले, पुलिस वाले डाले, तो उन्होंने 2 साल पहले उनके ऊपर एक पीडी एक्ट भी लग गया था। उन्हें 1 साल पीडी एक्ट डिटेंशन में था। फिर उन्होंने जेल से निकल के 1.5-2 साल हुआ, 1.5 साल हुआ। उसके बाद में बाहर निकल के वो मोडस ऑपरेंडी चेंज करके वो अटेंशन डाइवर्शन ऑफेंसेस करते हैं। इनका ऑपरेशन ये है, उन्होंने रोड पे जाते आते एक बुढ़ी औरतों को देख लेते, जो भी बोले वाले रहते, वो चलते रहते। उनको देख के उनको एक बार बोलते कि उधर आइए, पुलिस वालों की चेकिंग हो रहा, अम्मा तुम लगा ये नेकलेस लगा के जा रहे, निकाल के तुम पोटली में बांध के दे, तुम बोल के पहले वो बोल देता। वो लगा हैबत का के सही समझ के क्या करते, वो गोल्ड ऑर्नामेंट जो भी रहते उसका हाथ में देते, उन्होंने पुड़ी के वैसा बांध के कुछ दूसरा पुड़ी दे देता, वो जेब में डाल लेता। जा दे के फिर शहर से जाओ बोल के डाइवर्ट करके लेके भाग जाता। तो ऐसा ऑफेंसेस करा। 5 ऑफेंसेस हमारे इन्वेस्टिगेशन में निकले। एक ऑफेंस ऐसा बुधवेल में हुआ परसों, एक 15 दिन पहले। एक बुढ़ी बैंक के सामने से, वो कारपोरेटर के घर के पास, महात्मा के घर के सामने से जा रही थी, तो रोक के अम्मा पुलिस का चेकिंग हो रहा रोड पे, एक्सटेंशन सेंटर पे, वो तुम्हारे पास नेकलेस है, तुम उम्र बहुत है तुम्हारा, वो जेब में लगा के पोटली में बना के, वो तो उन्होंने सही समझ के तो ऐसा एक्टिंग करके उन्हें वो अटेंशन डाइवर्ट करके लेके भाग गया। वो ऑफेंस हो गया। उसके बाद महीने बाद में सेम ऑफेंस हुआ। ऐसी एक लेडी को भी ऐसी एक रास्ता बता तुम बोल के लेडी पूछे तो रास्ता बता दे के डाइवर्ट करके उनका गोल्ड का चेन लेके चले गया। और एक कुकुटपल में भी सेम ऑफेंस करा एक 6 महीने पहले, और एक रामतपुर में एक करा, और एक नारसिंह में एक करा। तो कल सुबह हमारे इंस्पेक्टर क्राइम इन्फॉर्मेशन मिला कि मूवमेंट ऐसा फिर रहा। इसका मतलब क्या, जो मोटरसाइकिल पे जाता उसका नंबर चेंज कर देता उन्हें। फिर वीडियो फुटेज में आया था, उन्होंने चेक कर तो दूसरा नंबर को चले आ रहा। घर भी आके कपड़े बदल लेता, फिर घर भी आके कपड़े चेंज करता। तो हमारा क्राइम टीम पूरा ट्रैक करते हुए 15 दिन से ट्रेमेंडस वर्क करे। हमारे इंस्पेक्टर राजू क्राइम्स राजेंद्र नगर और हमारे एसआई, हमारे एसओटी टीम पूरे मिलके, एसओटी का टीम दोनों कंजाइंट पूरे मिलके एफर्ट्स करके, एसओटी टीम और हमारे इंस्पेक्टर राजू वेंकट रेड्डी, एसओटी इंस्पेक्टर राजू और एसआई ऐश्वर्या पूरे हमारे इंस्पेक्टर डीएसआई क्राइम पूरे मिलके एक प्लान बना के घर तक पहुंचे उसका। तो पूरा वीडियो फुटेज निकाले, उन्हें कैसा नंबर चेंज करता देखे। लास्ट में उन्हें कल आज सुबह निकला 8:30 बजे दूसरा नंबर चेंज करके हम लोग आइडेंटिफाई करके पकड़ लिया उसको। पकड़ के एक देख रहे पूरे चेन जो है 5 केसेस के जो गोल्ड जो है पूरा रिकवर कर दिए हम। तकरीबन वो 11 तोला गोल्ड ऑर्नामेंट से पूरा सीज कर दिया। उसका गाड़ी भी सीज करे, उसको रिमांड करके भी आते। उसके ऊपर पीडी एक्ट भी लगाते हम उसको। इसलिए ये नहीं बता रहे, उन्हें उसका टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होना है, उस वजह से उसको आपके सामने पेश नहीं कर रहे हैं। थैंक यू। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से धरनी पोर्टल में जायदादों के इंदराज के मुतालिक जारी सर्वे में NAP ऐप के कलाम के एक तनों में आवाम से उनकी शख्सी जानकारी ली जा रही है, जिसमें ज़ात और तबके के मुतालिक भी जानकारी हासिल की जा रही है, जो कि सरासर आवाम के साथ धोखाधड़ी है।
इन ख्यालात का इजहार अमजदुल्ला खान खालिद तर्जुमान MBT ने सहाफ़ी नुमाइंदों के साथ बात करते हुए कही। इन्होंने कहा कि सिर्फ जायदाद के मालिक और उनके विरसे की इतलात ही ली जानी चाहिए। इन्होंने इस अमल को GHMC की एक साजिश करार दिया है। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन की ये रिपोर्ट। देखिए, तेलंगाना स्टेट में तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से एक सर्वे किया जा रहा है और उस सर्वे का नाम ये दिया गया है नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज अपडेशन, और उसका एक पोर्टल क्रिएट किया गया है जिसका नाम है धरानी पोर्टल। तो इसका मकसद ये है कि जिसके पास भी नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है उसका पूरा डाटा क्रिएट करने का एक बहाना बनाया जा रहा है। जो भी प्रॉपर्टीज खरीदते हैं या प्रॉपर्टीज बेचते हैं तो उसका पूरा डाटा जो है रजिस्ट्री डिपार्टमेंट है, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में रहता है। आप जो टैक्स देते हैं उसका बलदिया में उसका डाटा रहता है। लैंड सर्वे एक रिकॉर्ड्स जो रहता है उसके अंदर पूरा डाटा रहता है। जब आप लाइट का मीटर लेते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में उसका डाटा रहता है। आप उस मकान पे अगर पानी का कनेक्शन लेते हैं, वाटर कनेक्शन, तो हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर बोर्ड के पास आपका पूरा डाटा रहता है। तो ये तमाम यानी हर वो डाटा रहता है जो प्रॉपर्टी का होल्डर है उसका जो है जितने भी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज है इनको पूरों को आधार कार्ड से लिंक किया गया है। आधार कार्ड में उसका डाटा रहता है। लेकिन हालिया असेंबली में अचानक से चीफ मिनिस्टर साहब ने एक ऐलान किया। ऐलान करते हुए ये कहा कि नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज अपडेशन करने वाले हैं हम, सारा रिकॉर्ड एक जगह पर करेंगे। तो कई लोगों की नज़र से इसका नहीं गुजरा, लेकिन 1 अक्टूबर के दिन मेरा इत्तेफाक हुआ था एक बल्दिया दफ्तर को जाने का। जब मैं गया तो वहाँ पर एक फॉर्म, ये जो नॉन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज अपडेशन का ये फॉर्म मेरे हाथ को लगा। इस फॉर्म में जो है टोटल 10 स्टेप्स है, यानी 10 कॉलम दिए गए हैं। आपके घर पे बलदिया की तरफ से लोग आएंगे। बलदिया में इतना स्टाफ नहीं है तो टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर्स को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के स्टाफ को एनरोल किया गया है। आपके हर मकान पर आकर किसके नाम पे मकान है, प्रेजेंट ऑक्यूपायर कौन है, ये तमाम तफसीलात लेने की कोशिश की जा रही है। मकान किसके नाम पे है, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में पूरा रिकॉर्ड है। आप किससे खरीदे, ओपन प्लाट लिए या घर बनाए, कितनी बिल्डिंग है वो टैक्स डिपार्टमेंट में पूरा है जिसके हिसाब से टैक्स आता है। तो आया ये अपग्रेडेशन क्यों किया जा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी महाकाली हल्का की जानिब से आज सिकंदराबाद जोनल कमिश्नर ऑफिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद पर LRS स्कीम की बर्खास्तगी के मुतालबे को लेकर जबरदस्त एहतजाज दर्ज किया गया है। इस मौके पर बीजेपी कायदीन ने कहा कि TRS हुकूमत खजाने की भर्ती के लिए गरीब आवाम पर मसालिम उठा रही है और भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ अपना एहतजाज जारी रखेगी। एक छोटा आदमी जो आज 50 साल पहले रजिस्ट्रेशन हुआ, उसका आज के रेट से पैसे भरना हो तो क्या भरना वाजिब ధర్నా కార్యక్రమానికి మహాకాళి హైదరాబాద్ జిల్లా పార్టీ కార్యకర్తలు, నాయకులందరూ కూడా ఎక్కేశారు. మహాకాళి అమ్మవారి సాక్షిగా ఈ జిల్లాని అందరూ నాయకులు, కార్యకర్తలతో ముందుకు తీసుకెళ్ళి రాబోయే GHMC ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ సత్తా చూపుతుందని చెప్పేసి నేను మీకు తెలియజేస్తాను. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈనాటి ధర్నా LRS, TRS, ఇతర GHMC కార్పొరేషన్ చేస్తున్నటువంటి అవకతవకలు। नाज़रीन, आईने दक्कन की खबरों में यहाँ वक्त तो चला है मुख्तसर से ब्रेक का। क्या आप अपने कारोबार, तिजारती इदारे, स्कूल और कॉलेज की बेहतर तशहीर या एडवर्टाइजमेंट चाहते हैं? तो
तो हमारे वाहिद रियासती उर्दू और तेलुगु टीवी चैनल सिटी इंडिया न्यूज़ पर इश्तिहार दें। हमारे चैनल के प्रोग्राम हैदराबाद के दोनों शहरों में केबल नेटवर्क्स आईजे नेटवर्क और चॉइस नेटवर्क के चैनल नंबर 33 और 50 पर और महबूब नगर और रियासत के दूसरे अजला में सिटी डिजिटल के सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 पर टीवी पर देखे जा सकते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और हमारे मोबाइल ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ ऐप और हमारे वेबसाइट पर सारी दुनिया में हमारे प्रोग्राम देखे जाते हैं। तो देर किस बात की, स्क्रीन पर नजर आ रहे हमारे फ़ोन नंबर पर रब्त करें और फौरन अपना इश्तिहार बुक करवा लें। आप अपने नन्हे मुन्ने मासूम नटखट बच्चों की अदाएं, मस्ती भरी शरारतें, लड़खड़ाती हुई जबान से प्यारी प्यारी बातें, भोले भाले चेहरे बनाकर हंसना और हंसाना, अपने बच्चों की इन एक्टिविटीज को कैद कर लीजिए अपने कैमरे में। सिटी इंडिया टीवी लेकर आ रहा है अपने बच्चों के लिए एक ऐसा प्रोग्राम जहां आप अपने बच्चों के तमाम एक्टिविटीज को सारी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं और अपने बच्चों के टैलेंट को दिखा सकते हैं। जी हाँ, किड टॉक। वीडियोस भेजने के लिए हमारा ये व्हाट्सएप नंबर सेव करें 9700204658 और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं cityindianews@gmail.com। याद रखिए, अब अगर वीडियो बनेगा तो किड टॉक के लिए। कॉस्मिक बेक जोन पेश करते हैं उम्दा मुलायम दम के रोट, असली घी, मेवा जात बादाम, काजू, पिस्ता और असली खोवे से तैयार करदा उम्दा मुलायम लजीज और जायकेदार दम के रोट एक बार खाएं तो खाते ही रह जाएं। आपकी सहूलत के लिए मुफ्त डोर डिलीवरी का भी बेहतरीन इंतजाम। बस अपना फोन उठाएं और हमें ये नंबर मिलाएं 99852610079441554455 और गर्मा गर्म ताजे दम के रोट आपके घर पहुंच जाएंगे। सऊदी अरब, दुबई और दीगर बैरून ममालिक रवाना करने के लिए खुसूसी पैकिंग भी किया जाता है। तो फिर देर किस बात की, अभी मंगवा लें कॉस्मिक बेक जोन के जायकेदार दम के रोट आपके मुंतजिर। कॉस्मिक बेक जोन, महबूब नगर। नाज़रीन, उर्दू अगर जिस्म है तो जान है शायरी, उर्दू अगर फूल है तो खुशबू है शायरी। ज़ुबान उर्दू और शायरी का एक अटूट रिश्ता है। इस फ़न शायरी को मंजर आम पर लाने के लिए सिटी इंडिया न्यूज़ ने अपना एक अनोखा प्रोग्राम महफिल शेर का आगाज़ किया है। इस प्रोग्राम में हम आपके सामने उन तमाम शोरा को पेश करेंगे जो न सिर्फ हमारी रियासत तेलंगाना के मारूफ शोरा हैं बल्कि कौमी सतह पर भी अपनी फ़न शायरी के ज़रिए अपने जलवे बिखेर चुके हैं। तो नाज़रीन, इंतज़ार किस बात का, देखिए हमारा प्रोग्राम महफिल शेर। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। तिरुमला तिरुपति में मंदिर की जियारत के लिए पहुंचे तेलंगाना रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि GHMC इंतखाबात के लिए बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से GHMC इलेक्शन की मुकम्मल तैयारियां की जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि ये इंतखाबात बैलेट पेपर के जरिए ही करवाए जाएंगे। खबलसी पार्था सारथी का तिरुमला मंदिर के अहदेदारों की जानिब से इस्तकबाल किया गया। త్వరలో ఉంటాయి।
ఇంకా మేము డేట్ డిసైడ్ చేయలేదు, నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలి కదా, నవంబర్ డిసెంబర్లో ఉంటాయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. 5 अक्टूबर बोधन में एक खातून की नाश बरामद की गई थी। इस खातून की शनाख्त शन्नो नामे खातून के तौर पर की गई थी। पुलिस इस कत्ल के मामले को पुलिस बोधन ने आज हल कर लिया है। पुलिस ने मकतूल नबी और इसकी अहलिया शाहीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक नबी और इसकी अहलिया पानी कला शन्नो के घर में किराए पर थी, लेकिन कुछ दिन से शन्नो ने नबी को घर खाली करने के लिए तंग कर रही थी। सिर्फ इसी वजह से नबी और इसकी अहलिया ने इसे कत्ल कर डाला। एसीपी बोधन एन रामाराव और सर्कल इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने तफसीलात से आगाही हासिल की। कावरमपेट के रहने वाले अतार मोहम्मद अफसर, जो फिलहाल हैदराबाद में मुकीम हैं और एक कैब ड्राइवर की हैसियत से काम कर रहे हैं, लॉकडाउन के दौरान अपने हाथों से मुकम्मल कुरान शरीफ लिखकर एक मुनफरिद मकाम इन्होंने हासिल किया है। अफसर के दादा तार मोहम्मद अब्दुल रहीम दारुल उलूम कावरमपेट मदरसे में क़त्ताती के उस्ताद थे। तार मोहम्मद अफसर ने कल कावरमपेट का दौरा किया, जिस पर जनाब नूर मोहम्मद मालिक अल-नूर होटल की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद भी अमल में लाया गया और अपने कावरमपेट के होनहार बेटे की तहनीत पेश की। इस तहनीती तकरीब में मौलाना अलहाज तस्लीम अंसारी, नायब सदर दारुल उलूम कावरमपेट ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की है। इनके अलावा मोहम्मद मोतमद जामिया, मोहम्मद इस्माइल नक्शबंदी, अतार मोहम्मद अली, मोहम्मद नईम व दीगर भी मौजूद थे। पेश खिदमत है हमारे नुमाइंदे अजमत अली की ये रिपोर्ट। नुमाइंदा कौंसलर मजलिस बल्दिया बोधन मोहम्मद अल्ताफ ने सरकारी अस्पताल बोधन के डॉक्टर्स पर लापरवाही का इल्ज़ाम आयद किया है। इनका कहना है कि अस्पताल में डॉक्टर गैर हाजिर रहते हैं और इनकी जगह वॉचमैन, कंपाउंडर काम किया कर रहे हैं और तजुर्बे की कमी की वजह से इनकी जानिब से सही काम नहीं किया जा रहा है। मरीज जो तकलीफ लेकर जाता है उसकी तकलीफ में इजाफा ही हो रहा है। उन्होंने अपने बल्दी हल्के के नौजवानों के साथ इस मौके की तमाम तफसीलात बताई हैं। बोधन से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सुफियान की ये रिपोर्ट। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद अल्ताफ। 5 तारीख को एक वाक़या पेश आया। मेरे वार्ड का एक लड़का जिसका हाथ कट हो गया था, कट होने की वजह से शदीद खून बह गया था। फिर उसके घर वाले उसको हॉस्पिटल लेकर गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। फिर लेकर जाने के बाद वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड जो है वो पट्टी बांध कर भिजा दिया। फिर घर पर लेके आने के बाद खून नहीं रुकने की वजह से फिर लेकर गए, फिर पट्टी बांधकर सिक्योरिटी गार्ड भिजा दिया। फिर उसके बाद में ब्लड नहीं रुक रहा तो मुझे फ़ोन आया, फिर मैं गया। फिर जाकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखा तो ड्यूटी डॉक्टर जो है वो सो रहा है ऊपर। फिर मैं जाकर सिक्योरिटी को बोला डॉक्टर को बुलाओ। फिर उसके बाद इतना ज़ख्म रहने के बाद भी सिक्योरिटी गार्ड पट्टी बांध कर भिजा रहा है। मैंने डॉक्टर से पूछा तो वो कहने लगा कि मैं नहीं था, मैं ऊपर था, काम में था। फिर वो हो गया। इससे पहले भी मैं 15 दिन पहले आया। आने के बाद देखा कि सिक्योरिटी गार्ड ग्लूकोज चढ़ा रहा है, इंजेक्शन दे रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल आवाम की गरीब आवाम की खिदमत के लिए है, ना कि डॉक्टर अपनी मनमानी चलाए, बल्कि वहाँ पर गरीब आवाम की खिदमत करे। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ अहदेदारों से कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ तवज्जो। आदिलाबाद में नामालूम अफराद की जानिब से एक मंदिर में चोरी किए जाने की खबर है। तफसीलात के मुताबिक आदिलाबाद मस्तखर पर चुड़ेश्वर मंदिर में मूर्ति के ताज और गले में मौजूद सोने के जेवरात का सरखा कर लिया गया है। मंदिर में लगाए गए CCTV कैमरों में चोरी के ये मनाज़र कैद हो गए हैं। मकामी अवाम की इतला पर पुलिस की एक टीम ने वहां पहुंचकर तहक़ीक़ात का आगाज किया। ఎంత సింపుల్ పడతాడు ముట్టాడు దాన్ని అనామతి పడితే ముట్టాడు ముట్టాడు దాన్ని ముట్టాడు ఇక
అది మాకు 1 PM పోలీస్ స్టేషన్ ఇప్పుడు దొరుకుతుంది చూసిగా ఇటు ముఖం మళ్ళా వస్తాడు దొరికినట్టు ఇంత కీరవడానికి దొరుకుంటే దొరకబడుతుంది చిన్న పిల్లడే బచ్చపడడం ఎంకులు రాంజేడు కులాలు ఏటు పోతారు 4 రోజులలో మాకు కన్నా ముంగట 8 సీసీ కెమెరాలు షర్టుకు జీవి ఉన్నది बुलेटिन के अख्ताम से पहले डालेंगे एक नजर अहम सुर्खियों पर। काबतुल्लाह में सैनिटाइजिंग के लिए किया जा रहा है रोबोट का इस्तेमाल। ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र मुख्तलिफ कायदीन की जानिब से पार्टी बदलने का अमल जारी। जनरल कांग्रेस कमेटी मेदक ने थामा टीआरएस का दामन। बेगम बाजार के कब्रिस्तान की आराजी जीएचएमसी के गैर मजाज तामीरात के खिलाफ मजलिस का एहतजाज। और धरनी पोर्टल के लिए जारी सर्वे में गैर जरूरी जानकारी हासिल करने पर तर्जुमान एमबीटी अमजदुल्ला खान ने उठाए सवाल। रियासती खबरों के बुलेटिन आने देखने का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी, हक की आवाज़। दें इजाजत, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज, हक की आवाज़।